جی السلام علیکم سر. میں صرف 2 منٹ پہلے لائیو اس لیے آیا ہوں کہ تمام دوستوں کو میں جی ابو الحسن خوش آمدید. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ بہتر ہو گیا آپ نے اس کو 9 میں کر لیا نا قمر بھائی. اب ایک چھوٹی سی پریکٹس یہ بھی کر لیتے ہیں ہم کہ اس کو سکرین بڑے کرنے والا ایک ایکسپیرینس بھی کر لیں پلیز. جی وہ ہو گیا. یہ دیکھیے میں کر لیتا ہوں. یہ لے گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ گڈ. آج میں نے یہ بھی بات ختم ہوگی. اویس قمر سے میں نے 2 منٹ لیے تھے. انہوں نے مجھے یہ سارا سلسلہ سمجھا دیا ہوگا. ٹھیک ہے. ویری گڈ ویری گڈ ویری گڈ ویری تو گڈ. انشاءاللہ سر کو بھی لے لیں. میں چاہ رہا تھا کہ پورے ٹائم پہ لیتے لیکن چلیں ہم سر کو لیتے ہیں جناب. یہ دیکھیے اور یہ انوائٹ کر دیا ہم نے سر کو اور دوسرے دوستوں کو بھی آپ انوائٹ کر دیجئے جو دوست آنا ویلکم چاہیں. سر جی. 3-4 کو تو میں نے بھیجا ہے. جی بسم اللہ سر. موسٹ ویلکم سر. موسٹ ویلکم. اچھا یہ فرما دیجئے ابو کہ ایسے ٹھیک ہے؟ نہیں سر نہیں اس طرح سے نہیں ہے. ایسے ٹھیک ہے. ایسے ٹھیک ہے سر. ٹھیک. ایسے ٹھیک ہے سر. اچھا جی میں یہ بھی چیک کر لوں کہ ہاں ٹھیک ہو گیا. بند بھی ہو جاتا ہے. کافی کو دور رکھا جائے. ہاں جی ہاں جی. اچھا جی بہت بہتر. اللہ سفر اللہ مریض. جی ہاں جی جی. جدھر دیکھو ادھر ہی عشق کے بیمار بیٹھے ہیں. ہزاروں مر چکے ہیں سینکڑوں تیار بیٹھے مگر کچھ ہیں جو بس اب ہم سے وہ بیزار بیٹھے. جی ہاں. کیا کہنے ہیں سر کیا کہنے ہیں. کچھ بھی نہیں کہنے بھائی. اس بارے میں کیا یہ نہیں کہنا. ہزارے میں ایک مشاعرہ ہو رہا تھا. فراز صاحب قتیل فارغ بخاری صاحب مرحوم میرے ماموں رضا. تو میں پڑھ رہا تھا. ماں بھی تھیں اس مشاعرے میں. تو نیچے سے کہا کیا کہنے ہیں. میں نے کہا بھائی کچھ نہیں کہنے تم آرام سے مشاعرہ سن. ہماری بھابھی بھی شعر لکھتی ہیں. بہت اچھا شعر کہتی. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. مگر انہوں نے شادی کے بعد یہ طے کیا کہ گھر میں ایک شاعر ہونا چاہیے. ہاں بادشاہ ایک ہونا چاہیے. ہماری جرمنی کی ایک شاعرہ ہیں. انہیں شعر لکھنے کا بڑا شوق تھا. تو ان کے میاں صاحب جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے طاہرہ رباب. نہیں سر وہ میں بعد میں نام نہیں بتانا. تو وہ کیا ہوا کہ وہ پسند نہیں کرتے تھے مشاعروں میں جانا اور یہ وہ. تو انہیں پتہ نہیں کیسے ترکیب ذہن میں آئی کہ انہوں نے اپنے میاں صاحب کو شعر لکھنے پہ لگا دیا. تو اب وہ ماشاءاللہ شاعر ہیں. ایک تو بے وزن شاعر ہوتا ہے ایک بد وزن ہوتا ہے. لیکن بہرحال اس سے ان کو یہ ہوا کہ وہ
इजाज़त जो मिल गई मुशायरों में जाने की। जी, हमारे दोस्त आना शुरू हो गए हैं और आखिरी मिनट चल रहा है हमारा। जी मैं इसके बाद मैं हम बहुत अरसे से एक फिक्रा कहा करता हूँ कि जी एक ज़माना था जब शेर वज़नी हुआ करता था, जी हाँ अब शायर वज़नी होता है। जी बिस्मिल्लाह। जनाब किबला मुगल साहब तशरीफ़ ले आए। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। वालेकुम सलाम सर। सैयदी भी तशरीफ़ ले बस आए। सिर्फ आखिरी मिनट चल रहा है, इसके बाद हम बाकायदा अपने प्यारे अल्लाह करीम के नाम से इस प्रोग्राम का आगाज़ करेंगे और कुछ इब्तदाई बातें मैं करूँगा और उसके बाद इंशाअल्लाह हम अपने दोस्तों से आज के मौजू वालेकुम पर। सलाम वालेकुम अस्सलाम मुगल भाई, वालेकुम किबला मुगल अस्सलाम साहब। वालेकुम। जी मोस्ट वेलकम अवैस कमर, मेरा प्यारा शहजादा बेटा मून आ गया, ये भी हमें देख रहे हैं। और जी आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह करीम के बाबरकत नाम से हम अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं, जिसके कब्ज़ा कुदरत में हम सब की जाने हैं। लाखों करोड़ों दरूद और सलाम हमारे प्यारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुजतबा सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम और उनकी आल पर, जिनके सदक़े में ये कायनात वजूद में आई। अल्लाह करीम से दुआ है कि खुदा ताला हम सब को शैतान और दुश्मन के शर से महफूज रखे। इलाही आमीन, इलाही आमीन। अजीज़ दोस्तों, ये तारफ़ के तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि हमने ये जो लाइव शुरू की, आज इसका दूसरा प्रोग्राम है और इस लाइव का मकसद जो है, इस लाइव का दूसरा मकसद जो है वो सिर्फ ये है कि हम में, हमारे दोस्तों में हज़ारों गलतियां हैं, कोताहियां हैं, तो क्यों ना हम अपनी इस्लाह अपनी ज़ात से करना शुरू कर दें। जज़ाकल्लाह। उसी सिलसिले में हमने ये सोचा कि हम हफ्ते में 2 घंटे बैठा करें। हमारे साथ जो साहिब फ़हम और इदराक लोग शामिल होंगे, हम उनसे राय लिया करें, उनसे मशवरा लिया करें, हम उनसे सीखा करेंगे। हमारा आज का मौजू जो है वो है तालीम, इल्म, अमल, इंसानी रिश्तों के तकाज़े तनाजुर में। थोड़ा आसान करके बता देता हूँ कि हमारे यहाँ आजकल सोशल मीडिया पे इंसानी रिश्तों की बड़ी तज़हीक होती है। जैसे कि बहुत सारे हमारे दोस्त जो हैं वो बीवियों के हवाले से मुख्तलिफ़ फ़िल्में बनाते हैं, सास के हवाले से कुछ ख़वातीन बनाती हैं, खाला और फूफी वगैरह के किरदार को बड़ा मनफी करके पेश किया जाता है। तो ये ऐसा क्यों हुआ, क्या इसकी वजूहात क्या हैं और हम किस तरह से इसको रोक सकते हैं, ये आज का हमारा मौजू है। जैसे जैसे हमारे साथ दोस्त शामिल होते जाएंगे, वैसे वैसे हम उनसे राय लेते जाएंगे। मैं ये तारुफ करवा दूं कि हमारे साथ जो हमारे मोहतरम शरीके गुफ्तगू हैं वो सैयद सफ्दर हमदानी साहब हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं हैं। मैं जब से भी ये इस पे टिकटॉक लाइव पे आता हूँ, तो मेरे पास जितने भी दोस्त आते हैं उनमें से 80% लोग जो होते हैं वो सफ्दर हमदानी साहब से वाकफियत रखते हैं, उनको जानते हैं, उनको सुनते हैं, उनको पसंद करते हैं। और इस वक्त हमारे साथ जो हैं मेरे साथ जो मेरी टीम मेरे साथ ताउन करती है, मेरी मुआवनत करती हैं, वो हमारे अजीज़म अबुल हसन साहब हैं, जो यूएई से जिनका ताल्लुक़ है, और हमारी एक बहन जाहिदा खुशी साहिबा जो यूके में होती हैं, वो मेरे साथ ताउन करती हैं। मैं उनसे टिकटॉक भी सीखता हूँ और हम बाहमी मशवरे के साथ ये सारा सिलसिला जो है ये चलाते हैं। इस वक्त हमारे साथ जो मेहमान हैं वो जनाब रियाज शाह साहब हैं, उसके अलावा जनाब मूसा भाई हैं जो स्पेन से हैं, और रियाज भाई साहब जो है वो इटली से हैं। जो ही हमारे एक पैनल मुकम्मल होता है पहला, तो हम इंशाल्लाह इस प्रोग्राम को लेके आगे चलते हैं। मैं कुछ दोस्तों को इनवाइट कर रहा हूँ, आप भी इनवाइट कर दीजिए ताकि हम बाकायदा इस सिलसिले का आगाज़ करें और गुफ्तगू को शुरू करें। तब तक मैं आज के मौजू पर इब्तदाई गुफ्तगू जो है मुख्तसर करने के लिए मैं सफ्दर साहब से दरख्वास्त करूँगा कि वो इस पर रोशनी डालें कि हमने इस मौजू को किस तरह से बात करनी है और क्या हमारा आज का मकसद है। शुक्रिया अजीज़म कंबर। मुग़ल भाई, आपकी आमद का शुक्रिया।
सैयदी रियाज साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। जाहिदा सलामत रहिए, जीती रहिए। अवैस साहब, आपका भी शुक्रिया। मुझे एक दोस्त कह रहे थे कि आप सबका शुक्रिया क्यों अदा करते हैं। मैंने कहा हमारे मुआशरे में से जो अच्छी रिवायात गायब हुई हैं उनमें से ये भी एक बहुत अच्छी रिवायत थी। हमने अपने घरों में देखा कि बाप बेटे का शुक्रिया अदा किया करता था, भाई बहनों का शुक्रिया अदा करते थे, हम सब मिलके अपनी मरहुमा माँ का शुक्रिया अदा करते थे। वो चीज़ें हमने इम्प्लांट की यहाँ बरतानिया में रह कर भी अपने बच्चों में। तो जो अच्छी रिवायात हैं अगर वो चलती रहे मुआशरों के अंदर तो मुआशरे ज़िंदा रहते हैं। मुआशरों के मुर्दा होने की जो बहुत सी वजूहात हैं उनमें से एक बड़ी वजह रिवायात का मुर्दा हो जाना है। रिवायात बुरी चीज़ नहीं हुआ करती। देखिए, तालीम, इल्म और अमल बिल्कुल इब्तदाई गुफ्तगू है। मैं ऐसे समझिए जैसे हम करारदाद फ्लोट करते हैं, वो कर रहे हैं। और ये ममालिक के हिसाब से सोशल मीडिया में फेसबुक लाइव हो, यूट्यूब लाइव हो, टिकटॉक लाइव हो, तो ये बाकायदा अपने तौर पर एक यूनाइटेड नेशंस है। मैं समझता हूँ कि वो यूनाइटेड नेशन जो है वो 90% नाकाम है दुनिया में, मगर ये यूनाइटेड नेशन अगर इसे आप शऊर, फ़िक्र, आगाही, तालीम, इल्म, निज़ाम, एहतियात, इन सब के लिए अगर आप इस्तेमाल करें तो ये यूनाइटेड नेशन कभी भी फेल नहीं हो सकती। शर्त सिर्फ ये है कि आप नेक नियति के साथ सीखने और सिखलाने। मैं इस बात को बिल्कुल वाज़े तौर पर बता दूं कि मेरे समेत हम में से कोई भी उस्ताद के मकाम पे नहीं है। हम सब सीखने वाले हैं और आप कभी सोच नहीं सकते। मैंने चूँकि बहुत ज़माना पढ़ाया है तालिब इल्मों को, जापान में भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाया है, यहाँ भी बरतानिया में भी पढ़ाया, रेडियो पाकिस्तान की एकेडमी में भी 5-6 बरस पढ़ाया है। मैं आपको बहुत ईमानदारी से ये बात बता रहा हूँ कि उस्ताद जितना शागिर्द से सीखता है वो किसी से नहीं सीखता, बशर्ते कि उसमें सीखने की लगन हो, उपज। बहुत शुक्रिया। तालीम, इल्म और अमल, इन तीनों का चोली दामन का साथ है। बस ये जहन में रखिए कि इन्हें चूँकि हम रिश्तों के तनाजुर में देखना चाहते हैं तो कुछ रिश्ते तो ऐसे हैं जो परवरदिगार आलम ने कलाम पाक में बहुत वाज़े तौर पर नाम लेके बताएं, और उन तमाम रिश्तों की तकदीस बिल्कुल उसी तरह वाजिब है जिस तरह कलाम पाक की तकदीस वाजिब है। इंशाअल्लाह इस सारी गुफ्तगू को हमने आगाज़ के तौर, कलाम आगाज़ के तौर पर आपकी खिदमत में पेश किया। दोस्त आते जाएंगे, कारवां चलता जाएगा आगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। जी बिस्मिल्लाह। 2 बातें ज़रूरी हैं सर, जो भी मेरे अजीज़ दोस्त देख रहे हैं सबको खुशामदीद कहते हैं। मोहतरमा राठौर साहिबा भी आ गई हैं, चौधरी फ्रांस साहब भी, जाहिदा बहन भी, मून अवैस भी, और शाह साहब और मुगल साहब। 2 बातें मैंने दरख्वास्त पेश करनी है। हमारे जो नीचे आने वाले मेहमान हैं उनको भी हम खुशामदीद कहते हैं। ज़ैन अमजद साहब भी हमें देख रहे हैं और ज़ीशान साहब भी देख रहे हैं, बहुत शुक्रिया। 2 बातें करनी है। पहली बात ये है कि बाज़ दफ़ा ये होता है कि जब आप कोई अच्छा अमल कर रहे होते हैं और दूसरा आदमी उस अहल नहीं होता तो वो एक ख़ास किस्म की, आई डोंट नो कि उसको क्या नाम दिया जाए, उस जेलसी में आके वो कोई ना कोई शरारत करते हैं। जैसे हमारे साथ एक पहले भी हुआ। अगर हमारी ये लाइव गिर जाए किसी वजह से तो मेरे साथ जो मेरे साथी हैं अबुल हसन, जाहिदा खुशी और सफ्तर हमदानी साहब, आप उनकी वो फ़ौरन उनमें से कोई एक दोस्त फ़ौरन अपनी लाइव ऑन करेगा और हम सब वहाँ इकट्ठे हो जाएंगे ताकि हम अपने ख्यालात का इजहार आप उसी तरह से करते रहें। हमने रास्ते की किसी रुकावट को मुसीबत नहीं समझना। हम यही समझेंगे कि जैसे कोई वक्ती तौर पर एक छोटी सी प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से हम रुक गए। देखिए, मेरे साथ एक नौजवान है, अवैस कमर है। मैं उनको स्क्रीन पर लेता हूँ बड़ी पे, और उनसे मैं ये कहता हूँ कि आपने अपने घर के माहौल में हमारे मौजू के मुताबिक रिश्तों की अहमियत को किस तरह से जाना।
ये बड़ा गैर मुतवक्के सा है, क्योंकि मुझे अवैस ने ये नहीं कहा था कि मैं बोलूँगा, लेकिन मैं चाहता हूँ कि यहाँ पे जो दोस्त भी आए वो कुछ ना कुछ ज़रूर बोले। जी, अवैस कमर। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम। सवाल अपना दोबारा दोहराएं आप। कि हमारे माशरे में जो इंसानी रिश्ते हैं उनकी तजहीक की जा रही है। जैसे फूफी के बारे में वीडियोस बन रही हैं, जैसे बहू जो है वो सास के बारे में कोई मजाक मजाक करती हैं, या जैसे कोई खातून अपनी सास के बारे में जो तौहीन करती हैं, उसके बारे में बताइए कि ये क्यों हो रहा है और ये होना चाहिए नहीं होना चाहिए, इसका किस तरह से, या आपके घर में क्या क्या माहौल है कि आपके घर में जो रिश्ते हैं उनका उनकी उनकी इज्जत और तौकीर कैसे करते हैं? मैं बड़े ही सिंपल अल्फाज में शायद ये कहना चाहूँ कि अगर मेरे बारे में कोई ऐसी बात करे और मुझे पसंद ना आए, तो इंसान क्यों दूसरे के बारे में ऐसी बात करे। देखिए, जहाँ तक रिश्तों की बात है, हमने घर का माहौल देखा, अपने दादा से लेके फिर अपने वालिद को देखा है कि उनका अब सबके साथ, सब रिश्तेदारों के साथ कैसा बर्ताव है या कैसा हिसाब किताब है। मैं ये कहूँगा कि मैंने अपने घर का माहौल देख के उससे बहुत कुछ सीखा है, और उसका 5% अगर मैं अपनी लाइफ में इस्तेमाल करता हूँ तो लोग उससे बड़ा खुश होते हैं। हालांकि वो सिर्फ 5% है, मैं पूरा 100% वैसे नहीं आगे दे सका जो मैं, या कोशिश करते हैं देने की। तो वो 5% ही दुनिया को, बाहर की दुनिया को इतना अच्छा लगता है कि आपका बर्ताव आपका रिश्तेदारों के साथ, अपने कोलीग्स के साथ इतना अच्छा है। तो कई लोग अक्सर खुश भी होते हैं कि ये आपकी नरमी, ज़ुबान की नरमी, या आपका भाईचारा जिसे हम कहते हैं, एम्पैथी कहते हैं जिसे, ये कहाँ से आया। ये ऑफ कोर्स इंसान अपने माँ बाप से सीखता है, अपने घर के माहौल से सीखता है। अगर मेरे वालिद जो हैं मेरी वालदा की इज़्ज़त कर रहे हैं तो आगे मैं भी करूँगा। मेरी वालदा जो हैं वो मेरे वालिद की, अपने मियाँ की इज़्ज़त कर रही है, तो मेरी बहनें भी वो सीखेंगी और आगे बिल्कुल वही बर्ताव करेंगी। मैं बिल्कुल तैयार नहीं था, आपने मुझे कॉल पे ले लिए। मैं आपका बहुत आप शुक्रिया लोगों की बेटा, बातें आपने सुनने के लिए बहुत तैयार हूँ और सीखने के लिए आप सबसे। सफ्तर हमदानी साहब हैं, आपने बहुत पापा, लेकिन प्लीज़, मैं, मेरे कान खुले हुए हैं, मैं बड़े गौरव से बहुत आपका हम लोग को शुक्रिया, सुन रहा हूँ। आपका बहुत लेकिन शुक्रिया। प्लीज़ जी, बड़ा आप करना, जीते मुझे रहें। लाइव पे भी ना ले और मुझे ऊपर बिग स्क्रीन पे भी ना ले। जी, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया आपका। जी जी जी, हमारे अगले मेहमान हैं चौधरी चीमा साहब। सबसे पहले तो मैं चौधरी चीमा साहब को खुश आमदीद कहता हूँ, और इनके लिए बहुत सारी शादाब दुआएं और नेक तमन्नाएं हैं। चौधरी साहब, आपने आज का हमारा मौजू सुना, आप इस पर क्या इजहार करते हैं कि इंसानी रिश्तों की जो तजहीक हो रही है, ये क्यों हो रही है, और इसको हम किस तरह से इस पर कंट्रोल कर सकते हैं, अपने तौर पर हम कैसे कोशिश कर सकते हैं? जी। कमर भाई, चौधरी ठीक चीमा नहीं है, चौधरी फ्रांस भाई है। है। जी जी, चौधरी कोई बात फ्रांस, नहीं, आई एम सॉरी, मैं माजरत नो चाहता हूँ, वरीज, नो कोई चौधरी बात वरीज। फ्रांस नहीं भाई। है। जी चीमे भी जाटी होते हैं। जी चीमे जी भी जी। बंदे ही हैं। वो चीमे से याद आया, एक हमारा दोस्त है चीमा, तो वो कहते हैं कि बाबा आदम चीमा था। हाँ, ये ठीक है, ये सही बात, तो बाबा जी आदम खेती बाड़ी करता था, तो वो चीमा क्योंकि जी उसके साथ जो कुछ हुआ वो चीमों के साथ ही हुआ। जी। तो तो भाई चौधरी कमर, फ्रांस मैं भाई। ऐसा जी कहूँगा कि दो चीज़ें हैं इसमें। एक तो जैसे आपने कहा कि लोग थोड़ी बहुत को वीडियो बनाते हैं मजाक के तौर पे, तो अगर तो वो सिर्फ मजाक की हद तक रहे और कुछ ज़्यादा दूर ना जाए, तो वो तो चलो बंदा सोच सकता है यार किसी ने मजाक की हद में बनाई है। अब अगर इस चीज़ को तंजिया लिहाज से या रियली एक दूसरे के ख़िलाफ़ उकसाने के लिए कोई चीज़ बन रही है, तो फिर तो वो है कि ऐसी चीज़ें तो ज़ाहिर बात है कि किसी भी मज़हब, किसी भी माशरे में जो है वो टोलरेट नहीं होती हैं। तो जी इस वजह से सबसे पहले ये देखना चाहिए कि हम भी मजाक मजाक में कई दफ़ा पता है कोई रिश्तों पे भी कर जाते हैं, कोई ऐसी बातें हो जाती हैं। और आजकल वाकई लोग जो है कभी कभी हंसी भी आती है जो ऐसे वो मजाक बनाते हैं फूफो पे, या मिसाल के तौर पे मुझे कल परसों ही किसी का आया कि अपने बारे में बुरा मत सोचो, वो ऐसा सोचने के लिए तुम्हारे रिश्तेदार जो मौजूद हैं। तो ये एज ए मजाक आया है। तो ये कि इसे एज ए मजाक ही लेना चाहिए।
تو اس میں تھوڑی بہت حقیقت بھی ہوتی ہے. پتہ ہے بڑے بڑے شاعروں نے بھی لکھا ہے کہ انتظام، مجھے اب وہ شعر یاد نہیں آ رہا، لیکن کسی نے بڑا پیارا شعر لکھا تھا کہ میرے گرنے منتظر ہیں میرے اپنے ہی، کوئی ایسا ایک شعر ہے بڑا پیارا سا. تو یہ بات ہے کہ یہ تھوڑی بہت جو ہے رشتوں میں ہوتی رہتی ہے. تو باقی یہ ہے کہ رشتوں کو سنبھال کے رکھنا چاہیے. اور میں کہتا ہوں کہ جتنی آپ تھوڑی تھوڑی دوری رہے، چاچے کے بیٹوں میں، ماما کے بیٹوں میں، اگر بہت زیادہ بھی ایک جگہ پہ رہتے ہیں تو وہ پتہ ہی ہے آپ کو، پھر بھی وہی پرانی چاچا نے یہ کہا، ماما نے یہ کہا، تو پھر وہی پرابلمیں ہو جاتی ہیں. خاص طور پر ہمارے جٹوں میں تو صفدر صاحب آپ کو پتہ ہی ہے کیسے لنک ہوتے ہیں. تو میرا اپنا جو ذاتی تجربہ ہے، میں نے اپنے سارے کزنز لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، میں نے انہیں یہ کہا ہوا ہے کہ آپ کا جو ہے رشتہ میری ذات سے ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ میری امی جو ہیں وہ آپ کے ابو سے ناراض ہو گئی ہیں تو آپ نے 10 سال میرے ساتھ بات نہیں کرنی، یا میرے والد صاحب آپ کی اماں کے ساتھ کبھی بحث پڑے ہیں تو 6 مہینے سال 6 انہوں نے بعد میں 20 سال بعد بھی انہوں نے راضی ہو کے ایک ہو جانا ہے. تو ہم نے جو آپس میں ہم نے جو لڑائی ڈال لینی ہے، پھر اس کا جو ہے ہمیں بھی کوئی کچھ ملنا نہیں ہے، لیکن وہ بات آگے چلی جائے گی. تو اللہ کے فضل سے میری تقریباً سب کے ساتھ بہت اچھی انڈرسٹینڈنگ ہے. وہ اسی وجہ سے ہے کہ میں کہتا ہوں اگر میری ذات سے آپ کو ذرا رتی بار بھی کوئی دکھ پہنچ رہا ہے یا کوئی اور چیز ہو رہی ہے تو آپ فوراً مجھ سے بات کریں، میں معافی مانگوں گا. جو اس کا خیر مزہ ہوئے گا میں بھگتنے کے لیے تیار ہوں. بہت اچھی. تو یہ ہے کہ ایسے یہ ہے کہ مسائل جو ہے بڑھ رہے نہیں ہیں اور ہماری اچھی گزر رہی ہے. کئی دفعہ ہوا ہے ماموں ناراض ہیں لیکن ان کے بیٹوں کے ساتھ میری بڑی اچھی ہو رہی ہے. کئی دفعہ ہوتا ہے کہ چاچی ناراض ہیں تو ایسے بس پتہ ہی ہے خاندانوں میں چلتی رہتی ہیں. بہت خوبصورت بات آپ نے کی کہ اگر میری کسی سے کوئی مخالفت ہے تو میں اس مخالفت کو اپنی آنے والی نسل میں منتقل نہ کروں. جی یہ جی آپ نے بہت خوبصورت سوچ ہے آپ کی کہ اگر میری بہن سے اختلاف ہے یا میرے بھائی سے اختلاف ہے تو میرے بچوں کی وہ پھوپھی ہے، میرے بچوں کے چچا ہیں، تو بچوں میں وہ چیز منتقل نہیں ہونی چاہیے. بہت جی شکریہ آپ کا فرانس بھائی. اپنا تھینک یو. اگر آپ مناسب سمجھیں تو اپنا نام بتا دیں تاکہ ہم میرا اگلی نام دفعہ. افضال ہے، چودھری افضال. ماشاء اللہ. پھر آپ کا اور جی میرے نام میں صرف ایک کا فرق ہے، ایک کا فرق ہے کیونکہ میرا نام افضل ہے اور آپ کا نام اچھا افضال ہے، تو آپ کے میں 2 اے ہیں ماشاء اللہ. اچھا. تو لکھتا بہت میں بس. بھی نہیں، لکھتا میں بھی ایک ہی اے سے ہی ہوں. جی جی لیکن افضال ہی ہے. ٹھیک ہے ٹھیک ہے. جی جی اگر کوئی دوست ہمیں نیچے بیٹھا سن رہا ہے اور وہ اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہتا ہے تو وہ کمنٹ میں بتا سکتا ہے، ہم انہیں اوپر لے لیں گے. بہت شکریہ آپ کا جناب علی. اللہ کریم آپ کو بہت ساری نعمتوں سے مالا مال فرمائے. اب میں درخواست کروں گا اپنے بہت محترم دوست ریاض شاہ صاحب سے جو اٹلی میں ہیں. ہو سکتا ہے کہ ہمارا ایک راؤنڈ اور بھی لگ جائے، اس لیے دوستوں سے درخواست ہے کہ وہ یہیں پہ رہیں. اور کچھ دوست ایسے بھی ہیں جن کو زحمت دوں گا کہ ہم ان کو آخر پہ لیں گے. آخر پہ لینے سے مراد یہ ہے کہ وہ زیادہ جامع گفتگو کرتے ہیں اور سب کی گفتگو سن رہے ہوتے ہیں اور اس پر وہ پوائنٹ بھی نوٹ کرتے ہیں اور اس پر بھی وہ گفتگو کرتے ہیں، جیسے ہمارے ساتھ صفدر رمضانی صاحب ہیں یا محترمہ ڈاکٹر راٹھور صاحبہ بھی ہیں اور مغل صاحب بھی ہیں ہمارے. جی ریاض بھائی آپ فرمائیے. السلام علیکم سب کو. وعلیکم السلام. جی بہت اچھا موضوع ہے. تو اگر تربیت یا تعلیم کی بات کریں تو پھر وہ گھر سے شروع ہوتی ہے. تو میں اپنے آپ کو بہت خوش نصیب سمجھتا ہوں. ایک تو چلے اللہ تعالیٰ نے یہ شرف بخشا سید صاحب آپ بھی اور ہم بھی کہ اس گھرانے میں اللہ نے پیدا کیا. ہم اس قابل نہیں تھے لیکن چلیں اللہ نے چوز کر لیا. اچھا دوسرا یہ ہے کہ جو والد صاحب اور میرے جو دادا تھے ان کے اخلاق اتنے ہائی ہیں کہ ہم سوچتے ہیں کہ ہم بھائی کہ ہم اگر ان کا 1% بھی ہمارے اندر آ جائے نا تو یعنی کہ اب میں اس کو بیان نہیں کر سکتا. یہ نہیں کہ میں اپنا کوئی مارکیٹنگ کرنا چاہ رہا ہوں یہاں پہ یا کچھ ہے، کہ ایک بندے ہیں اور جو ان سادات کو یا اہل بیت کو یا اولیاء کو نہیں مانتے وہ ان کو پھر بھی مان رہے ہیں. یعنی ہمارے گاؤں میں غیر مقلد جو ہے ان کی اکثریت ہے. اس گاؤں میں ہمارے گھرانے نے وہاں پہ رکھا اور بڑی اچھی اپنی زندگی گزاری. اور میرے باپ نے مجھے کیا کہا، ایک تو میرے اندر جو وسعت پیدا کی نا کہ ہم چلیں فرض کر لیں تھوڑا کھل کے بات کریں کہ ہم اہل سنت سے ہیں. اچھا مجھے کہا کہ تم علامہ طالب جوہری علامہ رشید ترابی کو سنو. 12 سال کی عمر سے مجھے بٹھایا اور سنوایا کہ یہ شام غریباں ہے
ये सुनो, ये तुम बाहर सुनोगे ना वो चीज़ नहीं है, मैं तुम्हें खुद सुनवाता हूँ कि ये क्या है, तुम प्रोपेगेंडा सुनोगे। तो मेरे अंदर वो नफरत रिया- पैदा नहीं हुई जो दूसरी बहुत चीज़ों में हो सकती थी। आप बहुत अच्छी अच्छा बात कर रहे हैं रियाज भाई। हम जी लोग चूंकि ये इंसानियत के हवाले से बात कर रहे हैं, तो जब ये इंसानी रिश्ते या ये जो माशरे में जिस मौजू पे हम बात कर रहे हैं, उसमें हमारे यहाँ मुस्लिम भी रहते हैं, मसीही दोस्त भी रहते हैं, हिंदू भी रहते हैं, हर तरह की कम्युनिटी रहती है, और फिर उसके आगे मुख्तलिफ फिरकों के लोग भी रहते हैं। लेकिन हमारा ये मौजू मजहब से और फिरकों से बिल्कुल हट कर है, सिर्फ जी इंसानी माशरे के ऊपर है। जी जी वो मैं वो एक्सप्लेन करना चाह रहा था कि जो जी वसत है ना, कि मसलन हमारे इर्द गिर्द से तो वो हमें कहते थे कि सबको चचा कहो, जो आसपास है ना उनके हाँ नाम से नहीं पुकारना, उनको चचा करना, चचा कहना है। और बहुत से लोग कहते थे कि ये फला पता है आज़ाद, आवाज हाँ मेरे हम ख्याल से छोटी उम्र में ही बहुत अच्छे तरह से सबको चचा, बड़ा भाई, खाला, इन रिश्तों से पुकारते थे सबको छोटी उम्र में ही। जी दूसरा जो अखलाक की और तरबियत की बात की ना, तो क्योंकि घर घर से सिखाया जाए कि मसलन हमारे बड़े हमें वो तू नहीं करते थे, यानी कि रियाज नाम है तो रियाज हुसैन से पुकारना। तो हमारे अंदर भी कई चीज़ें बहुत अच्छी आई। तो असल में पता क्या, तरबियत और तालीम। अब जो मसाइल हैं हमारी फैमिलियों में या ख़ानदानों में, बहुत से मसाइल आ रहे हैं, उसकी वजह यह है कि बरादरी में मसला अभी एक भाई ने उन्होंने बात की, मैं भी अपनी फैमिली में करता हूँ जो छोटे हैं ना, कि अगर बड़े नाराज़ हैं तो ज़रूरी नहीं है छोटे भी उसी तरह नाराज़ हों, हर को मेरिट पर रहे। और छोटे जो हैं वो अगर बड़ों की लड़ाई में शामिल ना हो, वो अलग से अपना लिंक्स रखें, तो कोशिश करें कि अपने लिंक्स रखें। जी बहुत अच्छी बात, बहुत बहुत अच्छी अच्छा। बात की। मैं इस हवाले से एक छोटी सी मिसाल अपनी देता हूँ कि हर खानदान में कोई ना कोई मसाइल होते रहते हैं, हर खानदान में बहुत सारे झगड़े भी होते हैं, फैमिलीज के आपस में इख्तलाफात भी होते हैं। लेकिन मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने अल्लाह करीम के आगे बड़ा सुरखरू हूँ कि मैंने अपने बच्चों में रिश्तेदारों की नफरत नहीं डाली। मेरे ऐसे रिश्तेदार भी हैं, बड़े करीबी रिश्तेदार हैं, जिनसे मेरे 13-13, 14-14 साल से मेरी गुफ्तगू उनसे नहीं है, जबकि मैंने कोशिश भी की। लेकिन मेरे बच्चे जो हैं, वो इस बात से कता नज़र, वो अपने चचाओं से, फूफों से, उन रिश्तेदारों से भी जहाँ भी वो नज़र आते हैं, वो उनको सलाम ज़रूर करते हैं। सलाम अंकल जी, सलाम चाचा जी, सलाम जो भी उनका रिश्ता होता है। तो क्या ही अच्छा हो कि अगर हम अपनी इख्तलाफात, जैसे कि अब चौधरी फराज साहब ने कहा, कि अपने तक रखें और बच्चों में ये चीज़ मुंतकिल ना होने दें। उनको बच्चों को वो रिश्तों का एहसास हम दिलाते रहते हैं। हमारे साथ नए मेहमान आए हैं काजी जी, मैं उनसे दरख्वास्त करता हूँ कि हमारे इस मौजू के ऊपर वो आके बात करें और अपना तारुफ भी करवा दें। जी काजी साहब। जी अस्सलाम जी वालेकुम। पहले अस्सलाम महफिल वालेकुम जी। को सलाम हमारा बिरादर कारी सलाम और साहब। आदाब। कमर भाई, सफदर हमदानी साहब और तमाम अहबाब, मेरी तरफ से अदब सलाम। जी बिस्मिल्लाह वालेकुम बिस्मिल्लाह। सलाम। और हमारा अबुल उस्ताद हसन अबुल हसन जी जाफी जी साहब को ले लेना अगर जगह बने। जी जी काजमी जी साहब। जी जी सफदर साहब हमारे उस्ताद हैं, इन्होंने लाइव शेयर की और हम सुन रहे थे। शुक्रिया शुक्रिया गाजी भाई। तो ये जो कतई ताल्लुक़ करने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, पहला पॉइंट तो ये हम सबको याद रखना चाहिए। सिला रहमी का हुक्म है। बहुत अच्छी बात। और मुख्तसरन जो हमारा अपना ज़िंदगी का तजुर्बा है कि रिश्तों में जो आपने जो जिस बात पे हम लोग बात कर रहे हैं, जिसके हल के लिए, कि जब कम्युनिकेशन गैप आ जाता है, जब बातचीत नहीं होती है, चाहे आज से हम जितने भी महफिल में बैठे हैं और जो भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं, वो खुद अपने आप से ये सवाल करें कि मैंने कितने दिन हो गए किस दोस्त से रब्ता नहीं किया, किस रिश्तेदार से मैंने उसका हाल अहवाल नहीं पूछा। हम परदेसी हैं और हम इस चीज़ को ज़्यादा फील करते हैं। कभी कभी आपको खुद फील होगा कि यार मेरा इतना करीबी दोस्त था, 2 साल हो गए मैंने उसके हाल ही नहीं पूछा। हाँ मेरी फुप्पी कहाँ है, मेरी फुप्पी, रिश्तेदार। जब आप खुद आज लिस्ट बनाएं, उनके नंबर ढूंढें भाई कि वो किधर हैं, आपके दोस्त यार किधर हैं, स्कूल वाले कहाँ गए, कॉलेज वाला वो भाई किधर है, ढूंढें उसको। और आज के सोशल मीडिया में ये आसानी हुई है कि हमें अपने 20 साल पुराने दोस्त भी मिले हैं। और हम आज से 5 साल पहले पाकिस्तान का हमने टूर किया, सिर्फ अपने स्कूल के दोस्तों से मिले और 25-25 साल बाद उनसे मुलाकात हुई। तो
آج اگر آپ چاہتے ہیں کہ رشتوں میں مضبوطی آئے، تعلق کے لیے چاہے تعلق باللہ ہو چاہے تعلق بالانسان ہو، وقت آپ کتنا دیتے ہیں. مین چیز یہ ہے کہ آپ اس چیز کے لیے وقت کتنا دیتے ہیں، نمبر 1. نمبر 2، احساس کا رشتہ ہے کہ آپ کی فیلنگ کیا ہے، آپ کیا محسوس کرتے ہیں کسی کے بارے میں. میں بچوں سے اپنا سوال کرتا ہوں کہ یار میں اپنے بچوں کی شاپنگ کے لیے مارکیٹ میں جاتا ہوں، چھوٹے بچے کے لیے میں سامان ڈھونڈ رہا ہوتا ہوں بڑی لگن سے کہ اس کو یہ چاہیے. کیا وہ فیلنگ میں اپنی ماں کے لیے کوئی سامان ڈھونڈنے کے لیے رکھتا ہوں؟ کیا وہ سیم فیلنگ ہے کہ میں اپنے باپ کے لیے کوئی گفٹ ڈھونڈنے کے لیے میں وہ فیلنگ رکھ رہا ہوں؟ یا میں ایسی جا رہا ہوں تو یار چلو ابو کو بھی یہ گفٹ دے دوں گا؟ کیا وہ فیلنگ جو میں اپنی گرل فرینڈ کے لیے رکھتا ہوں، جو اپنے محبوب ہستی کے لیے رکھتا ہوں؟ تو یہ احساس جب تک ہمارے دلوں میں نہیں جاگے گا ایک دوسرے کے لیے، تو احترام کا پیچھے رہ جاتا ہے. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں تو ہمارے اندر احساس کا رشتہ ہے، ہم سب ایک دوسرے سے جو جڑے ہیں، فیلنگز کا رشتہ ہے. علم کے رتبے میں ہر کوئی اوپر نیچے ہوگا، اور استاد کی بات بالکل صحیح ہے کہ ہمارے صرف 2 ہی ہیں زندہ رہنے کے لیے، یا تو ہم سیکھ رہے ہیں یا ہم سکھا رہے ہیں. اگر ہم ان دونوں میں سے نہیں ہیں تو ہم مردہ ہیں، ہم زندہ ہی نہیں ہیں بھائی. بہت یاد بہت تو، اچھی بات. اور جب میرا علم میرا معلوم بن جائے گا تب میرے کو سکون ملے گا. تو ایک واقعہ میں سناتا ہوں، پھر اجازت چاہوں گا آپ سب سے کہ ہماری شادی بھی ہو گئی اور ہم گئے کراچی. تو ابو سے وہ کوئی بات ایسی ہو رہی تھی تو انہوں نے ہمیں تھپڑ مارا زور سے، میرے فادر نے تھپڑ مارا. تو میں اوپر جا کے تھوڑا سا رویا، تو میری امی آئیں، بولا کیا ہو گیا؟ میں نے کہا بس ابو نے تھپڑ مارا ہے. تو کہہ رہے درد ہو رہا ہے؟ میں نے کہا نہیں، تھپڑ تو بچپن سے کھا رہے ہیں لیکن میں نے محسوس کیا کہ ان کے ہاتھ میں اب وہ طاقت نہیں رہی، کمزوری محسوس ہوئی مجھے. تو میں اس وجہ سے رو رہا ہوں کہ میرا باپ کمزور ہو گیا ہے. پہلے اس کا تھپڑ لگتا تھا تو ہم گر پڑتے تھے، درد کی شدت محسوس ہوتی تھی. آج بھی انہوں نے تھپڑ تو مارا ہے لیکن وہ مجھے لگا کہ کمزور ہو گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کے جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام بلند کرے. بہت تو شکریہ. بہت بہت شکریہ جی آپ سب کا، اور ہم سن رہے ہیں آپ سب کو. سلامت رہیے قاضی بھائی، بہت خوبصورت، بہت مختصر لیکن بہت جامع گفتگو کی آپ نے. بہت شکریہ میرے پیارے اور محترم دوست. اللہ کریم آپ کے والد صاحب کے درجات بلند فرمائے. اب ہم مہمان لیتے ہیں جی گوہر شاہ صاحب. یہ ایک بلاگ بھی چلاتے ہیں اور ماشاءاللہ سے بڑی عمدہ گفتگو کرتے ہیں. ان سے رائے لیتے ہیں کہ ہمارے آج کے موضوع کے اوپر یہ اپنے خیالات کیسے اظہار کرتے ہیں. جی گوہر بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. سب ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمدللہ جی الحمدللہ. بہت اچھی گفتگو ہو رہی ہے، اور باجی نے بولا کہ کمبل والے جو ہے نا اوپر 2 گھنٹے کا سیشن چلائیں گے تو آپ ضرور آئیں گے. میں بولا ضرور انشاءاللہ شامل ہوں گے. تو رمضانی صاحب بھی بیٹھے ہیں ہمارے سینئر سٹیزن، سب کو سلام کہتا ہوں. اور آپ پڑھو میں ماشاءاللہ بہت اچھی باتیں کی. ہماری چھوٹی منہ بڑی بات ہو جائے گی. اور جو قاضی صاحب نے آخری جو مثال دی جو حقیقت پہ مبنی تھی، تو اس سے جڑا ایک واقعہ میں بھی سناؤں گا. انسانیت بس ابھی کچھ ہی لوگوں میں باقی ہے جو ہم ہوتے ہوئے لوگ ہیں. انسانیت ہم گھر سے سیکھتے ہیں. انسانیت کا درس جو ہے نا وہ ہمیں گھر سے ملتا ہے. اگر ہم چاہتے ہیں کہ اسکول میں ہم سیکھتے ہیں، نہیں، اسکول سے انسانیت کا درس ہم نہیں سیکھتے. اسکول سے ہم صرف ایک ڈائریکشن پکڑتے ہیں کہ اس ڈائریکشن میں ہم نے جانا ہے لائف میں. مگر انسانیت ہم گھر سے کیسے سیکھتے ہیں؟ اپنے ماں باپ سے، جو بیسٹ ٹیچر ہیں، چاہے وہ ان پڑھ چاہے وہ ایجوکیٹڈ ہو. دنیا کے سب سے بڑے جو آپ کے اساتذہ ہوتے ہیں وہ ماں باپ ہوتے ہیں. بے شک. اگر آپ ان کی رسپیکٹ اور ان کا خیال رکھیں نا، تو وہ خیال نہ بھی رکھے پھر بھی آپ کو پروٹیکٹ کریں گے کیونکہ آپ ان کے اولاد ہو.
जैसे कंबर भाई के जैसे कि वो तो कैमरे के सामने थे, आंसू निकले काजी साहब की बात पे, तो हमारे कैमरे के पीछे आंसू निकले, क्योंकि इस चीज़ का एक बेटा जब छोटा तब पैदा हो गया, 5-6 साल का हो गया, तो रोज़ अब्बू को बोलता था कि मुझे उस चौराहे पे लेके जाओ, जो पश्तो में हम उसे गुदर कहते हैं। तो चौराहे पे लेके जाता था, तो बेटा बाप से पूछता था कि अब्बा जी वो क्या है, बोलते वो कौवा है। फिर पूछता था कि वो क्या है, 1 मिनट बाद बोलते कौवा है। 10 मिनट में 50 बार पूछे उसने कि वो कौवा है। वक्त गुजरा, बेटा जवान हो गया, बाप बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया, ज़ईफ़ हो गया। तो बेटे को बोला एक दिन कि बाहर मुझे निकालो चौराहे पे। बोलते अब्बा जी मेरे पास टाइम नहीं है। अली भाई अपना माइक बंद कर लेना प्लीज। बोलते अब्बा जी मेरे पास टाइम नहीं है। दूसरे दिन बोला, तीसरे दिन बोला, बोलते आ जाओ लेके चलता हूँ, क्यों बार बार तंग करते हो। तो लेके गया, तो अब्बा जी ने पूछा कि वो सामने क्या है, बोलते वो गाड़ी है। अब्बा जी बेटा जी ये वो क्या है, बोलते हैं गाड़ी है। तीसरी बार पूछा कि अब्बा जी वो क्या है, बोलते तुम्हें होश नहीं है, तुम्हारा दिमाग काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। मैं बोल रहा हूँ कि गाड़ी है, गाड़ी है, गाड़ी है, समझ आ रही है आपको नहीं। तो आज हम, तो उसने फिर कंधे पे हाथ रख के ये बोला कि बेटा ज्यादा मत उछलो। जब तुम 5 साल के थे, मैं इसी चौराहे पे लेके आता, तुम 50 बार पूछते थे, मेरा मुंह नहीं तकता था। अभी मेरे 3 बार पूछने पे मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा, मैं कमज़ोर और ज़ईफ़ हो गया हूँ। तो ताकत की बात कि इंसानियत देखो, अगर हम अपने घर को देखें, अपने घर से ही हमको सीख मिलती है। जो जी कंबर भाई ने जो मिसाल दी है उस पर भी मैं आता हूँ कि वालिदैन की उनकी जीते जी उनकी इज्जत करें, उनको इतना प्यार देना कि वो आपको हमेशा प्रोटेक्ट करें। ठीक है। गौर भाई मैं आपकी बात काट रहा हूँ। असल में हमारा जो आज का मौजू है ना, हम्म, वो है जो वालिदैन की तो इज्जत हम सारे करते ही हैं, एहतराम भी करते हैं, हमारा दीन भी यही सिखाता है, हमारे प्यारे आका का भी यही हम्म, हुक्म है। उसके अलावा कुरान पाक में या हमारे आप प्यारे आका ने जो दूसरे रिश्तेदार हैं उनके बारे में एहतराम का जो रिश्ता है, एहतराम का जो पहलू है, वो आजकल बहुत लोग जो है उसको फरामोश कर रहे हैं। जैसे चाचा का रिश्ता है, खाला का रिश्ता है, फूफी का रिश्ता है, सास का रिश्ता है। इस हवाले से जी जी, अगर आप कोई उसी बात करें। उसी 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 पे आ रहा हूँ। जैसे आपने मिसाल दी कि 15 साल से मैंने वो किया है, तो इसका शिकार हम भी हो चुके हैं। जो प्रैक्टिकल इंसान पे गुजरा होना, ठीक है, इंसान को अल्लाह या ख़ानदान में या माशरे में कभी ना गिराए। ये गिराना उसे, अभी हमारे माशरे में गिराना किसे कहते हैं कि आप फाइनेंशियली डिस्टर्ब होते हैं, आप गिर जाए। आजकल के जहाँ तक मैंने सोचा है, जहाँ तक मैंने उसकी, मगर इस चीज़ को मैंने कभी वो नहीं किया कि मैं आप पैसों की वजह से या फाइनेंशियली डिस्टर्ब हुए आप गिर जाए। नहीं, आपका गिरना जो है ना, गिराता ही आपको रिश्तेदार है, उठाते भी रिश्तेदार हैं। ठीक है। और दूसरी बात यह है कि मेरे वालिद साहब की भी इसी तरह 10-15 साल से कुछ रिश्तों के साथ, यानी दिल में कोई उनकी खलिश नहीं थी। ठीक है, दिल में कोई खलिश नहीं थी, कोई वो नहीं था, बुग़्ज़ नहीं था, बहुत कुछ भी नहीं था। मगर उन्होंने कभी घर में ये जिक्र नहीं किया कि आपके ताया अबू के साथ, आपके चाचा के साथ, या तुम्हारी फूफी के साथ, या मेरे बहनोई के साथ, या इसके साथ या उसके साथ मेरा नहीं लगता। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तीसरी चौथी नस्ल आपस में इस तरह कम्युनिकेट करते हैं ना। अगर हम एक बंदा एजुकेशन नहीं हासिल करे तो दूसरा कज़न हमारा आता है कि तुमने ये चीज़ क्यों नहीं की, क्यों नहीं कर बहुत रहे, अच्छी बात, बहुत क्यों अच्छी नहीं कर बात, रहे। अभी हमने इस तरह स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई है, बहुत अच्छी बात। स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग बनाई है। मैं प्यार मोहब्बत के 10 रिश्तेदारों में, जैसे काजी साहब ने बात की है कि जन्नत में ही दाखिल नहीं की, क्योंकि पहले हिसाब किताब इसी चीज़ का होगा। ठीक है। जी आपसे ये पूछा जाएगा कि यार आपने, देखो दिल दुखाना जो है ना बहुत आसान है, 1 मिनट में आप किसी का दिल दुखा देते हैं। ठीक है, मगर उसका गुनाह बहुत कबीरा है। ठीक है, मगर किसी का दिल नहीं दुखाना चाहिए।
चाहे वो आपके अहबाब हो, चाहे आपके दोस्त हो। सिंपल बात यह है कि अगर कोई आपको दो भी सुनाए, सब जगह के सीधे निकल जाना, उसका गुस्सा ठंडा हो जाएगा, ठीक है, और बहुत ताल्लुक भी अपनी जगह कायम रहेगा। थैंक यू सो मच। जी, बहुत शुक्रिया मेरे प्यारे दोस्त, आपने अपने तजुर्बात की रोशनी में बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू की है। मैं हमदानी साहब से मशवरा देता हूँ कि क्या ख्याल है कि हम एक दफ़ा तलत भाई के तासुरात ले लें और उसके बाद फिर हमारे जो सीनियर दोस्त हैं जी जी उनसे भी जी जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी जी तलत भाई हमारा आज का मौजू है। अच्छा, एक और ज़िमनन बात करना चाहता हूँ कि अगर कोई दोस्त अपने ख्यालात का इजहार कर देता है तो हम नए मेहमान के लिए अगर उनको जो इस टिकटॉक पे कंबर ज़ुबान भाई, बोली जाती है कंबर कि भाई, मैं अगर हम इसी नीचे इसी गिरा पे दें तो बैठता वो हूँ, ये ना मैं समझे इन्हीं पे कि बैठता हूँ, ठीक है कंबर भाई। तो अगर दूसरे नए मेहमान के लिए जगह बन जाए तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। बहुत शुक्रिया आपका तलत भाई। इंसानी रिश्तों के हवाले से बात कीजिए कि आजकल जो रिश्तों की तौहीन होती है और उस पर वीडियोस बन रही हैं और सितम ज़रीफ़ी ये है कि उस पर सैकड़ों लाइक आते हैं और मिलियंस के हिसाब से उसके देखने वाले हैं और ये हम इस पर हम कैसे इसको निगलेक्ट कर सकते हैं? जी। जी बिल्कुल कमर भाई, अस्सलाम वालेकुम सबको जी। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। ये जो है ना आजकल वाकई आज बल्कि कल ना वो हुसैन अली हॉस्पिटल में है, तो उसका दोस्त क्लास फेलो और उसकी माँ इधर आई थी। वो हालांकि वो इटालियन है, तो इनका भी कल्चर हमसे थोड़ा मिलता है। पुराना इनका कल्चर जो था ना, फैमिली माहौल था। तो वो भी यही कह रही थी कि आजकल जो है ना रिश्तों का बिल्कुल कोई तराम नहीं रहा। ये हमारे मुल्क में भी अब यही है। ये आप जैसे कह रहे थे खाला मामू चाचा, वो रिश्ता ही नहीं समझते ये ना। जी। यानी कि हम लोग जिस दौर में पैदा हुए हैं, हम तो कोई मोहल्ले का बुजुर्ग, कोई गांव का जो, उसके सामने भी यानी कि वो कोई ऐसी वैसी हरकत करने से डरते थे। लेकिन जी। अब कोई रिश्तों का एहतराम बिल्कुल नहीं रहा। मैं आपको बात बताऊं ना, सॉरी, मैं काफ़ी साल पहले की बात है। मैं डेनमार्क गया, मामू मेरे एक इधर आए हुए थे और एक मामू डेनमार्क में थे। तो मामू ने इधर को शॉप बनानी थी, उनसे पैसे लेने गया। तो मामू अल्लाह ताला जन्नत नसीब करे, बहुत नेक इंसान थे। तो मुझे कहते हैं, तलत तुमने मेरे घर वालों को तो नहीं बताया कि तुम किस लिए आए हो, पैसे लेने नहीं आए हो? मैंने कहा नहीं, मैं डेनमार्क बोला कि आया था कोपेनहेगन, तो मैं उधर से आ गया हूँ आपको मिलने। वो आगे से बता कहते हैं यहाँ के जो आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो बहन भाइयों को लोग समझते हैं, इनको नहीं पता रिश्तों का। और वाकई सही बात है, ये रिश्ते बहुत मुकद्दस होते हैं। लेकिन आजकल ये दूर के रिश्तेदार तो छोड़ें, अपने सगे बहन भाई जो हैं उनके आपस में इतने इख्तलाफ आते हैं। हालांकि पुराने ज़माने में गुर्बत थी, लोगों के पास वसाइल कम थे, लेकिन प्यार मोहब्बत था। लेकिन आजकल पता नहीं क्या हो गया, ये बिल्कुल दुनिया चेंज हो गई है। तो रिश्तों का एहतराम वो करना चाहिए, रिश्तों के बगैर बंदा कुछ नहीं है। बहुत शुक्रिया। आपने दुरुस्त फरमाया कि ये हमें अपनी आने वाली नस्ल में भी ये चीज़ मुंतकिल करनी चाहिए कि रिश्तों का एहतराम जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी, वो मैं जी। आजकल के दौर में आप अपने घर की सबसे पहले अपनी औलाद को सही करें, तो बाकी बाद में। और आजकल लोगों की औलाद ही कंट्रोल में नहीं है। जी, बस यही वो पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस कर रहे हैं और हमारे सुनने वाले यकीनन उससे मुस्तफ़ीद होंगे और वो इससे थोड़ा फ़ायदा उठा के ये सारे सिलसिले जो हैं वो इस पर कंट्रोल करेंगे। मैं चूँकि डॉक्टर साहिबा जो हैं ये माशाल्लाह बहुत ज़्यादा मुफस्सल गुफ्तगू करती हैं, इसलिए मैंने इनको थोड़ी देर पहले ले माशाल्लाह। लिया कि ये अपनी गुफ्तगू करें और उसके बाद थोड़ा-सा इनसे पाउज़े करवाएँगे और उसके बाद फिर आखिर पे इनके भी मज़ीद ख़यालात ले लेंगे। डॉक्टर राठौर साहिबा इंसानी हकूक़ के हवाले से काम करती हैं, बहुत सारे दोस्त जो हैं वहाँ पे टिकटॉक पे हैं, इनको जानते हैं। जी डॉक्टर साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मेरी तरफ से सबको बहुत एहतराम और सलाम कबूल करें, अपना हमदानी साहब और जितने भी यहाँ पे हैं। और मैं आप सबका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस काबिल समझा, क्योंकि मैं अपने आप को एक मिट्टी का खाक का ज़र्रा हूँ और इतने बड़ी हस्तियों में बैठना मैं अपने आप को किसी काबिल नहीं समझती। आपने मुझे मौका दिया, मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आपकी। बहुत मैं जो अभी गुफ्तगू थी सबकी सुन रही थी। एक्चुअली जो टॉपिक है वो बेसिकली तो हुकूकुल इबाद के मतलब है
اور رشتہ اور ادب دو مختلف چیزیں ہیں. جیسے کہ ہمدانی صاحب کی کل ایک میں نے بہت خوبصورت بات مجھے سیکھنے کو ملی، حرف اور لفظ کا فرق، جو مجھے پتہ تو تھا لیکن مجھے پاس الفاظ نہیں تھے، اور کل میں نے ان سے وہ سیکھا اور مجھے بہت زیادہ جو تھا کانسیپٹ کلیئر ہوا اس میں. تو اسی طرح رشتہ ہونا اور ادب، ان کا تعلق آپس میں بہت ضروری ہے، لیکن چونکہ رشتے ہمیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کیے جاتے ہیں، ادب ہم نے دنیا میں رہ کے سیکھنا ہوتا ہے، اور ادب کا تعلق ہماری تہذیب، ہمارے گھر اور ہماری مورل ویلیوز سے ہوتا ہے. واہ ہم چونکہ اپنے گھر سے ہی وہ تہذیب ہمیں جب نہیں ملے گی اور رشتے کو زحمت سمجھنا شروع کر دیا جائے گا، تو ہم اس طرح سے چیزوں کو لے کے نہیں چل سکتے. اور جہاں تک اخلاقیات کی بات ہے، اس کا ڈائریکٹ تعلق بھی حقوق العباد سے ہے. تو آپ کے ماں باپ کے آپس میں ریلیشن اور اپنے فیملی کے ساتھ ریلیشن، آپ کے بچوں کے ساتھ کیسی باؤنڈریز ہیں، یہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہیں. اور بچہ چونکہ ماں کی پیٹ میں ہی ہر چیز کو محسوس کرنا شروع کر دیتا ہے، وہ آپ کی نفرت بھی ہو سکتی ہے، آپ کی محبت بھی ہو سکتی ہے. بہت ہم خوبصورت پوائنٹ ہے. ان چیزوں کو، کیونکہ برین آپ کا کام کرنا شروع ہو جاتا ہے جب قلب آپ کا دھڑکتا ہے بچے کا، تو اس کی روح اتر چکی ہوتی ہے اس میں، واہ اور قلب سے ہی روح اترتی ہے. اور جب روح آ گئی، قلب آ گیا اور دنیا میں آنا باقی ہے، تو اٹس مین کہ اس کی مینٹلی گروتھ تو ہونا شروع ہو گئی. جس کی بڑے مثال دیتے ہیں کہ ایک پڑھی لکھی ماں کا بچہ جو ہوتا ہے، ایک ڈاکٹر کی ماں کا بچہ ڈاکٹر، اور ایک وکیل کی ماں کا بچہ وکیل ہوتا ہے، کیونکہ بچے کا تعلق ڈائریکٹ ماں سے ہے، اس لیے پرورش اور تربیت ماں سے اثر لاتی ہے. اس میں باپ کا کردار، ماں کے ساتھ بیہیویئر آف فیملی، یہ سب بہت امپورٹنٹ چیزیں ہوتی ہیں. سیکنڈلی صحبت، آپ کی صحبت کیا ہے، آپ کے بڑوں کی صحبت کیا ہے. ہم لوگوں نے یہ سب چیزیں مس کر دی ہیں. اور آج کے دور میں جہاں تک میں نے اسٹڈی کی ہے، مجھے نہیں پتا میں ٹھیک کہتی ہوں کہ نہیں، لیکن ہم سب آج کی جنریشن، ہم اپنی مرضی کے مالک ہو گئے ہیں. ہم چاہتے ہیں کہ ہم بڑوں سے اپنی مرضی کا جواب سنیں، کیونکہ ہمیں ٹچ سکرین سے اپنی مرضی کا رزلٹ مل رہا ہے. اور درست. پہلے اگر ہم 10 سال پہلے چلے جائیں تو ہم ایک ایسی لائف میں تھے کہ ہمیں کسی سوال کے لیے بڑے کے پاس جانا پڑتا تھا. کہ جیسے مجھے کچھ چیزوں کے سوال اشفاق احمد اشفاق صاحب سے پوچھنے کا موقع ملا، تو مجھے انہوں نے بہت خوبصورت باتیں سکھائیں، اور مجھے آج تک وہ باتیں میری زندگی کے لیے مشعل راہ ہیں. لیکن آج اگر میں کوئی سوال پوچھنا چاہوں گی تو میں گوگل میں جاؤں گی، ٹچ اسکرین کو یوز کروں گی، تو ہماری جو فنگر ٹپس کے اوپر بلڈ کی سرکولیشن ہے، یہ ٹچ سکرین کو چلاتی ہے. اور ہم عادی ہو گئے ہیں، ہمارے برین عادی ہو گئے ہیں اپنی مرضی کے رزلٹ لینے کے لیے، جس کی وجہ درست. سے ہم میں نان ٹالرنس جو ہے وہ آ چکی ہے. اور ایون کہ گیمز اور یہ سب جیسے پب جی اور اس طرح کی گیمز اتنی ایگریسو اور ٹاکسک ہو چکی ہیں کہ آپ اپنے آپ پہ کنٹرول نہیں رکھتے، اور مطلب آپ اتنے ایگریسو ہو جاتے ہیں کہ آپ رشتوں کا احترام کیا، آپ اس کو ختم کرنے پہ آ جاتے ہیں. تو میں سمجھتی ہوں کہ اس کی یوزز اور ایبیوزز یہ بہت امپورٹنٹ ہیں. جو چیز آپ کو گھر کے ماحول نے نہیں سکھائی، آپ کی تعلیم نے نہیں سکھائی، اس کو علم کے ذریعے حاصل کریں. اور علم کے ذریعے آپ تبھی حاصل کر سکتے ہیں جب علم پھیلے گا روشنی کی طرح. علم بک رہا ہے، اللہ کو مانتے ہیں، اللہ کی نہیں مانتے. ہم نے اسلام قبول کیا ہے، اپنایا نہیں ہے. واہ واہ جب تک ہم کسی چیز کو اپنائیں گے نہیں، ہمیں اس کا اثر نہیں نظر آئے گا. تعلیم علم بن کے عطا ہوتی ہے، نازل تب ہوتی ہے جب آپ عمل سے گزرتے ہیں. درست. تو بہت اچھی بات. ہم عمل سے تو ڈرتے ہیں. ہم علم حاصل کرتے ہیں اور علم حاصل کرنے کے بعد باہر بیچنا شروع کر دیتے ہیں. عمل کا پروسیس تو بیچ میں ہی رہ جاتا ہے. تو آپ دیکھیں، علم اور عمل، یہ تینوں لفظ جو ہیں، حرف تینوں ایک ہی ہیں. علم عین لام میم، عمل عین میم لام. اب علم میں عین ہے، لام ہے، میم ہے. لا سے ہوتی ہے نفی، نفی اپنی ذات کی. علم میں ہم لوگ عین اور میم کے بیچ میں ہمارا نفس بھائل ہے اور ہم لا کے مقام پہ پھنس چکے ہیں، بلاکیج ہیں. لیکن جیسے ہم عمل میں لاتے ہیں نا،
हम ला की नफ़ी कर देते हैं, अपनी ज़ात की नफ़ी कर देते हैं, और वो नफ़ी आपको झुका देती है, एहतराम में ले जाती है, सबमिशन करवा देती है उस रब के सामने, जो रब के सामने सबमिट हो गया वो उसकी मखलूक के सामने भी सबमिट हो गया। तो बहुत हमें खूबसूरत। अपनी ज़ात की नफ़ी करना सबसे मुश्किल काम लगता है, जो अमल से साबित होती है, ना कि ना गुफ्तगू से, ना ही हमारी किताबें पढ़ने से, ना ही हमें लोगों को सुनने से। हर चीज़ पोशीदा है अमल में, और अमल से बनती हैं तकदीरें। इल्म से तकदीर कभी नहीं बनी, ना ही इल्म से शऊर आएगा। जब तक इल्म अमल बन के तुम्हारी रूह पे नहीं छाएगा, तुम्हारा इल्म काम नहीं आएगा। वाह बहुत खूबसूरत वाह गुफ्तगू थैंक यू फरमा सो रही मच। हैं हमारी मोहतरम वाह डॉक्टर राठौर साहिबा। थैंक डॉक्टर यू। साहिबा, आपसे दरख्वास्त ये करूँगा कि आप अभी जाइएगा नहीं, हमारे साथ नहीं रहिएगा, नहीं नहीं, आप ही ताकि जाओ। मैं आपसे आखिरी लम्हात में भी आपके व्यूज़ ले सकूं। हमारे साथ मुग़ल कारपेंटर के नाम से जो आईडी है, हमारे प्यारे दोस्त हैं मूसा भाई, बहुत देखने में बड़े सादा नज़र आते हैं, लेकिन इनकी तहरीरें देख के, इनकी गुफ्तगू सुन के इनके लिए एक शेर कहता हूँ कि अ, अ, तू बज़ाहिर तो बहुत सादा नज़र आता है। मैं मिसरा भूल गया, अपना शेर याद नहीं रहता। मुग़ल भाई, आप आज के मौजू के बारे में क्या फरमाना चाहते हैं? अस्सलाम वालेकुम तमाम हजरात, कैसे हैं आप सब? ब्रॉड सुनने वाले, देखने वाले और बैठे हुए सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत सलाम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। अस्सलाम रहमतुल्लाहि व शॉर्ट बरकातहू। टाइम में बात करनी है पूरी रिश्तों पे। मेरी किताब देना। बंद आंखों में भी मुझे ज्यादा पसंद। जी, जी, मुग़ल भाई। जी, बात सबसे पहले हमने करनी है रिश्तों पर। जी भाई। सब ने माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत बातचीत की है, तो मेरे ख्याल के मुताबिक रिश्तों की पहचान नहीं हुई। हम थोड़ा सा 20 साल पीछे चले जाएंगे ना, 25 साल 30 साल, तो उस टाइम तालीम कम थी, इल्म ज़्यादा था। वाह 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 वाह। बात असल में क्या है कि आज के सोशल मीडिया के दौर में सबसे ज़्यादा जो बदनाम रिश्ता है फुफो। क्या एग्जैक्टली। किसी ने पूछा कि हमारे बाप के अंदर जो खून है और जो दूध है वो ही हमारी फुफो के अंदर भी है? अगर हमारी फुफो ऐसी है तो हमारा बाप भी ऐसा ही होगा। अगर हमारा वाह! बाप ऐसा है तो हमारा दादा भी ऐसा ही होगा। अगर हमारा दादा ऐसा है तो उसकी दादा की औलाद भी ऐसी जी। जी। ऐसे ही ये हमारे रिश्ते हैं खून के, ये हमारी पहचान है, हमारी सकाफत, हमारी रवायात है। दूसरी तरफ चले जाएंगे ननियाल की तरफ, तो अक्सर आप लोगों ने अपने इर्द गिर्द देखा होगा कि कुछ लोगों की वालदा फौत हो जाती है, वो छोटे से होते हैं, तो फिर मजबूरन हाला को शादी करके लाना पड़ता है, और वो अपनी पहली वाली बहन यानी कि माँ बनकर ही उनको पालती है। वो ही नानी होती है कि जो अपने नवासे नवासियों के लिए चोरी चोरी कोई ना कोई चीज़ें खिलाती है, उनको देती है। कैसे रिश्तों को सर का ताज बनाना चाहिए या रुस्वा करना चाहिए? ये रिश्ते तब रुस्वा हुए थे जब तालीम तो आ गई थी, लेकिन अखलाकियात मुग़ल भाई, खानदानों में 1 मिनट के लिए रोकूंगा। अंसर भाई, इसके बाद मैं आपको लूंगा, आप जाइए नहीं, सिर्फ 2 लम्हे ठहर जाइए। जी, जी, मुग़ल भाई। अगर वो जल्दी में है तो आप उनसे ले लें, हम यहीं, हम घर वाले हैं, हम मेज़बान हैं। माशाल्लाह, मौला सलामत रखे। आप गुफ्तगू जारी रखें, आपने भी कहीं नहीं जाना। अपनी आपको फिर दोबारा से भी मैं दावत दूंगा और ज़हमत दूंगा। मैं नहीं जाऊंगा, मैं आपको यहीं आप मिलूंगा बात उनको मुकम्मल मिलूंगा। कीजिए। जी, बात मुकम्मल कीजिए। तो बात ये है कि हम लोग किसी को फिर जब ये तालीम याफ्ता बहनें हमारी, बेटी हमारी आ गई ना, तो तब ये चीज़ें बाहर निकली, क्योंकि हमने छोटे छोटे बचपने जहन के मुताबिक इनके सामने ये बातें करना शुरू कर दी। तो बच्चों के जहन में वो आ गया कि भाई तुम्हारी फुफ्फो आ गई है तो वो ये करेगी, तुम्हारी खाला आ गई है तो ये करेगी। ये फिर घरों में ये चीज़ चल पड़ी। घरों में ये चीज़ नहीं सिखाई जाती कि ये तुम्हारा खून है,
یہ تمہارا ننیال ہے. آپ یہ چیز سوچیں قمر بھائی. اور سر آپ سے گزارش ہے کہ میں جہاں غلط ہوں گا مجھے روک دینا. مدینہ پاک میں محفل لگی ہوئی تھی، نبی پاک بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کو پتہ ہے کہ وہاں شورہ حضرات آپ کی ثنا بیانی کیا کرتے تھے. جب وہ آپ کی خدمت میں شعر وغیرہ سناتے تھے نا، تو ان میں سے کچھ شاعر زیادہ جلدی مقام لینے کے لیے اہل قریش پر کچھ زیادہ ہی برے القابات کہتے تھے، تو آپ سر جھکا دیتے تھے رحمت للعالمین. پھر آپ نے ناراضگی کا اظہار کر کے یہ کہا کہ یار کہ دیکھو آپ لوگ میری شان میں ایسے ایسے الفاظ کہتے ہو، ان کو بدنام کرتے ہو، تو وہ جو کوئی بھی ہیں، کسی بھی قبیلے سے ہیں، قریش سے ہیں، امیہ سے ہیں، کسی سے بھی ہے تو میرے اپنے نا. بس آپ ان کے لیے دعا کرو کہ اللہ ان کو ہدایت نصیب کرے اور وہ دائرہ اسلام میں آ جائے. یعنی کہ اسلام تو پھر رشتوں کا مجموعہ کہلا گیا نا، جہاں پہ ہر رشتے کی ایک عزت بن گئی. تو کیا ہم دوبارہ اس سے پیچھے والے دور میں نہیں گزرنا شروع ہو گئے تعلیم یافتہ ہو کر؟ بہت آج خوبصورت. کے تعلیم یافتہ دور کو دیکھو، یہ جن کے اوپر پی ایچ ڈی کرتے ہیں، 100 میں سے 80% جو ہیں جن پر پی ایچ ڈی ہوتی ہے، انہوں نے کون سی درسگاہوں سے ڈگریاں لی تھیں؟ کسی سے بھی نہیں. صرف ان کے پاس علم اور ادب تھا. تو لوگ آج ان پر پی ایچ ڈی کر کے تو ڈگری لیتے ہیں. وہ انسانیت پہ چلتے تھے. انسانیت میں سب سے اہم چیز ہوتی ہے یہ ادب اور احترام. اور پلیز اگر آپ تعلیم یافتہ ہو کے ان چیزوں کو برا کہیں گے نا، تو آپ سے وہ ایک سادہ سا انسان جو کہتا تھا کہ اللہ میاں نیچے آ میں تمہاری جوئیں نکالوں، وہ تھا. تو میں اپنی بات ختم کرتا ہوں، پھر مغل بھائی انشاءاللہ بہت شکریہ آپ کا. فلم پر آپ بات کی کریں. گفتگو میں جو مجھے جس پوائنٹ نے بڑا متاثر کیا وہ یہ ہے کہ اگر ہم پھوپھی کے بارے میں کوئی غلط رائے رکھتے ہیں تو ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ جہاں سے میرے باپ نے دودھ پیا ہے وہیں سے اس نے دودھ پیا ہے. یہ ایک بہت خوبصورت بات آپ نے کہی ہے. اور مجھے شعر یاد آ گیا کہ تیری سلجھی ہوئی گفتار جگر کھینچتی ہے، تو بظاہر تو بہت سادہ نظر آتا ہے. یہ آپ کے نام تھا. اب ہمارے ساتھ انصر جاوید صاحب ہیں. میں معذرت چاہتا ہوں جاوید بھائی، انصر صاحب کے اچھا نہیں لگتا اگر کوئی ہمارے دوست اچھی گفتگو کر رہا ہو تو اس کو ٹوکنا. آپ کو انتظار کی زحمت کرنی پڑی، اس کے لیے معذرت. جی فرمائیے آج کے موضوع کے السلام بارے میں آپ علیکم کیا کہتے ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ. السلام. میں معذرت چاہتا ہوں، ایسی کوئی بات نہیں. ماشاءاللہ بہت اچھی محفل ہو رہی ہے، آداب کی محفل ہے. آداب کی محفل میں سے یعنی کہ جب بڑے بات کر رہے ہوں تو چھوٹوں کو بات نہیں کرنی چاہیے، ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک تو اللہ. جب کہیں محفل لگی ہو تو ادھر بڑے بیٹھ کے اپنی گفتگو کر رہے ہو نا سیریس انداز میں، تو چھوٹوں کا ادھر یعنی کہ کوئی ان کے پاس ایسے الفاظ نہیں ہوتے وہ بڑوں کی گفتگو میں مظاہرہ کر دیں. یہ جو آپی نورین ہے یہ میری بڑی بہن ہے، میں نے کہا چھوٹا بھائی بھی ہوں، ان کے بیٹے کی طرح ہوں، ٹھیک ہے. یہ بیٹھے انشاءاللہ. میں جب جدھر یہ ہے میں یعنی کہ میری کوئی اتنی اوقات نہیں، میری کوئی اتنی ہمت نہیں ان کی محفل کے اندر میں بیٹھ کے، کیونکہ میں ان سے چھوٹا ہوں. تو سب سے بڑا اداب یہی ہے، ٹھیک ہے. میں جس محفل میں یہ بیٹھے ہوں ادھر بیٹھ کے میں کسی بات کا یعنی کہ کچھ سوال جواب کروں. جو بھائی نے ابھی بات کیا پھپھو کے حوالے سے، پھپھو الحمدللہ بہت اچھا پاکیزہ رشتہ ہے، ٹھیک ہے. تو یہ وہی ہمارے باپ کی دادا کی ہماری وہی نسل ہوتی ہے. اور میں ان لوگوں کو کے ساتھ اختلاف رکھتا ہوں جو اپنی پھپھو کے ساتھ اختلاف رکھتے ہیں. حقیقت میں پھپھو جو ہے وہ بہت ہی ایک باپ کی طرح ایک مقدس رشتہ ہے. جس طرح ہم کو اپنی بہن اپنی بیٹی عزیز ہے، اسی طرح ہم کو اپنے باپ کی بھی بہن کو اسی طرح عزیز رکھنا چاہیے. بہت اچھی بات ہے. بہت شکریہ آپ کا. آپ کی جو بڑی بہن ہے، اب مجھے اندازہ نہیں ہے کہ وہ مجھ سے چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، وہ ہماری بھی بہن ہے اور ہمارے لیے بھی ویسے ہی محترم ہے جس طرح کے جذبات آپ کے ہیں. آپ کا بہت شکریہ. اس سے اب بعد میں لیتا ہوں. یہ ہمارے ایک دوست ہیں، میرے خیال سے میں نے جہاں تک مجھے لگتا ہے کہ یہ پیشے کے اعتبار سے لائر ہے. معذرت
जी जी ये मादरत बैरिस्टर एक इनको मैंने इनवाइट किया है और बहुत अच्छे ये इंशाल्लाह जज बनने जा रहे हैं। मैं दोबारा फिर आप ही 5-10 मिनट में 5-10 जी मिनट जी थोड़ा सा ठीक है टाइम लग जाएगा, तरावी पढ़नी है, इशा की नमाज पढ़नी है, उसके बाद अगर महफ़िल रखी तो मैं फिर आपकी खिदमत में जी ठीक है सलाम भाई करने थैंक जी आऊँगा। अंसर भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला जज़ाकल्लाह हमारे लिए। जज़ाकल्लाह अस्सलाम जज़ाकल्लाह। अगर वालेकुम मेरी किसी बात वरहमतुल्लाहि से आप वबरकातुहू। यानी कोई अच्छी मेरी बात वालेकुम ना लगी हो तो सलाम। मैं मादरत चाहता हूँ। जज़ाकल्लाह। अरे तमाम बुजुर्गान आपका दीन को मेरा सलाम और अल्लाह ताला कुल कायनात की खैर करे। भाई माजरत बुजुर्गान दीन जो है ना, ये थोड़ा सा आपने गड़बड़ कर दी है। अच्छा जी बैरिस्टर साहब अभी हम यंग है, बुजुर्गाने दीन नहीं है। नहीं नहीं, तमाम बुजुर्गान दीन इस महफिल के अलावा भी अच्छा मतलब हाँ सबको वेलकम, मेरा सलाम बहुत ओके शुक्रिया इस जी, सफ़ा फरमाइए। हस्ती पे। ओके जी मुझे शायद मैं ये हमारी कहना कोमल को चाहूँगा कि प्रॉब्लम आ रही। बेसिकली आप जैसा मतलब मुझे इस महफिल में बैठने का शर्फ हासिल हुआ, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और दूसरे हम खुश नसीब हैं सब कि हम हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत में से हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले। तो मैंने जो अपनी ज़िंदगी में चीज़ देखी है अपनी एज के अकॉर्डिंग, वो ये देखी है कि सबसे ज़्यादा इस माशरे की जिसने तबाही की है वो है हमारे टीवी चैनल्स। आप कभी भी किसी भी ड्रामे में देखेंगे तो आपको इरेलीवेंट कंटेंट नज़र आएगा, ठीक है। और सबसे ज़्यादा तबाही चाहे बहू हो सास हो उनके आपस के रिश्ते हों, तो उसमें सबसे ज़्यादा जो तबाही का किरदार अदा करता है वो हमारे ड्रामा सीरियल्स करते हैं। सफदर साहब ये पॉइंट बड़ा खूबसूरत है, इसको जी नोट कर मैंने लीजिए। लिखा लिखा। जी दूसरी बात ये है कि वैसे हमारे लिए वालिदैन बहुत अच्छे हैं, ठीक है, बच्चे उनके लिए अच्छे हैं, पर वालिदैनों ने जो टीमें बनाई हुई हैं अपने घर में जो आर्मी के तौर पे इस्तेमाल हो रही हैं, ठीक है, कि जैसे दादू को सुन के आओ वो क्या बात कर रही थी मेरे बारे में, हाय 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 हाय। ठीक है। और जब गाड़ी में बैठे हुए हैं तो सब इकट्ठे बैठे हुए हैं जिस टाइम पे, तो वो क्या करेंगे कि गाने शाने बंद करो, वो फलां का बताओ कि उसने क्या किया था, फलां पप्पो ने क्या किया था, खाला ने क्या किया था। तो आप अपनी औलाद को खुद ही गलत एजुकेट कर रहे हैं, ठीक है, उनको आप गलत रास्ते पे चला रहे हैं, आप उनको कीना बुग्स बोतान ये तो आपको अपने घर से सिखा रहे हैं आप उन लोगों को। और बच्चों के दरमियान वालिदैन के दरमियान इतना ज़्यादा कम्युनिकेशन गैप है कि जिस टाइम पाकिस्तान से हूँ मैं, लाइट जाती है तो उस टाइम सब माशाल्लाह से इकट्ठे बैठते हैं, और जैसे ही लाइट आती है तो सब अपने गैजेट्स में बिज़ी हो जाते हैं। साथ बैठी हुई कमरे में माँ है, बेटी है, बहन है, उसका पता नहीं है, पर जिससे सारी ज़िंदगी कभी नहीं मिलना उसके साथ बहुत ज़्यादा क्लोज हैं। मैं आपकी बात काटते हुए एक अर्ज करना चाहता हूँ कि आपकी जो स्क्रीन पे तस्वीर आ रही है, जी इसको देख के मुझे कुछ और अंदाज़ा हुआ था, लेकिन मुझे आपकी गुफ्तगू सुन के बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा, थैंक यू माशाल्लाह। सो मच। आपके लिए दुआएं हैं जी। तो ये मेरा अपना मतलब सोचा हुआ है कि मतलब जो मैंने देखा है अपनी आंखों से कि हम अपने ही घर में जो है वो गलत तरीके से बच्चों को एजुकेट कर रहे हैं। बहुत अच्छा पॉइंट आपने उठाया, बड़ी खुशी हुई, और इस बात की भी जी खुशी हुई कि राठौर साहिबा के गुलदस्ते में से एक फूल, खूबसूरत सा फूल जो आपकी सूरत में हमारे सामने आया। डॉक्टर साहिबा मेरे लिए रोल मॉडल हैं, हम्म, और मैं बहुत सुनता हूँ इनको और बहुत सीखा मैंने इनसे, और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि इस प्लेटफॉर्म पे मैं इनसे मिला। जी बहुत शुक्रिया, आप जीते रहें, आप हमारे साथ रहिए, इंशाल्लाह हम इस बारे में आपसे मज़ीद भी गुफ्तगू करेंगे। मैं थैंक यू दरख्वास्त सो करता हूँ, मच। हमारे दोस्त हैं, बड़े मोहतरम हैं, मुझे पता है कि वो मुझे बहुत ज़्यादा नाराज़ होंगे मुझसे, लेकिन मैं उनके भी ख़यालात ज़रूर लेना चाहता हूँ। रबा अली साहब हैं, साउथ अफ्रीका में रहते हैं, और मेरे तकरीबन 8 साल से मेरे ये इसी मीडिया के थ्रू दोस्त हैं। इनके लिए दुआएं हैं जी। तुसी दसो सरकार, रिश्तिਆਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇੱਕ ਗੱਲ ਐਡ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਕਰਨਾ ਕਿ ਮੈਂ ਬਚਪਨ ਤੋਂ ਹੀ ਸੁਣਦਾ ਆਇਆ ਕਿ ਚੰਦਾ ਮਾਮੂ ਹੈ, मैं चंदा चाचू क्यों नहीं सुनया। ये मैं जो हमारे पहले दोस्त एडवोकेट आए थे उनका सहारा लेते हुए ये मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि उन्होंने इशारा दिया था उस तरफ कि जब वालिदैन आपस में बैठते हैं तो वो बच्चों के सामने रिश्तेदारों के बारे में ऐसी बात क्यों करते हैं। तो मैं यही बात के हमें चंदा मामू सिखाया गया, चंदा चाचू क्यों नहीं सिखाया गया जी। माइक खोलो तो ज्यादा अच्छी गल है।
ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਓਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਮੈਂ ਖੋਲ ਲਿਆ, ਮਾਈਕ ਖੋਲ ਲਿਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਮੈਂ ਆਦਾਬ तमाम साहिबान ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ अर्ज़ है कि मेरी ये बसात नहीं कि मैं हमदानी साहब और कमर भाई और राठौर साहबा जैसी हस्तियाँ के सामने कुछ बयान करूँ या बोल पाऊँ, क्योंकि मैं बड़ा कुंज़ेन हूँ, पढ़ा लिखा भी नहीं हूँ। बहरहाल एक नाकस सोच या मतलब है जितना मैं जानता हूँ इस हवाले से जो हमारा आज टॉपिक है इल्म, अदब और रिश्ता। एक बात मैं रिपीट करना चाहूँगा राठौर साहिबा की कि रिश्ता और अदब जो है वो बिल्कुल अलग चीज़ें हैं। अदब आपको घर में सीखने से भी मिलता है और घर से बाहर भी आपको माहौल भी सिखाता है। जिस किस्म का माहौल हो उससे भी आप सीख सकते हैं, ऑब्ज़र्व कर सकते हैं। बाकी जो रिश्ता है मेरे नज़दीक, मेरी सोच के मुताबिक, जितना आपके अंदर एक खूबसूरत एहसास है उतना ही आपके नज़दीक एक खूबसूरत रिश्ता है। खूबसूरत एहसास का नाम खूबसूरत रिश्ता है। उसकी मैं आपको एक छोटी सी मिसाल दूंगा कि खालिक़ कायनात ने हमारे लिए सबसे बड़ा और ख़ूबसूरत रिश्ता जो है वो माँ का बनाया है, माँ की शक्ल में दिए। अगर आपके अंदर एहसास नहीं है ना तो आपकी माँ भी एक आम औरत है। अगर एहसास है तो वो आपकी माँ है। बहुत अच्छी। इसलिए मैं अर्ज़ करना चाहूँगा कि जितना अच्छा और जितना बड़ा आपके अंदर एहसास होगा इतना ही बड़ा रिश्ता आपका आपके सामने वाले से होगा। खैर वो आपका ब्लड रिलेशन है, खूनी रिश्ता है, या इससे हट के, खून से हट के। मेरे नज़दीक तो यही है कि खूबसूरत एहसास और अच्छा एहसास ही एक अच्छा रिश्ता है। बहुत खूबसूरत, बहुत उसके अच्छी बाद बात रहेगी इल्म की। अगर एक बंदा पढ़ लिख जाता है, साहिब इल्म हो जाता है, तो उसके एहसास में वो इजाफ़ा करता है, उसका एहसास जो है वो पॉलिश हो जाता है, उसको मज़ीद रिश्ते जो हैं उनकी पहचान हो जाती है और अपनी ज़िंदगी में वो आसान तरीके से वो अपने रिश्ते जो है वो उनको निभा सकते हैं। देखें ना जी, हमदानी साहब हैं, कमर भाई हैं, हमारे दरमियान एक एहसास है जी। हम एहसास करते हैं कि ये कमर साहब है, ये मेरे भाई हैं। अदरवाइज़ हमारे दरमियान कोई ब्लड रिलेशन या ब्लड का रिश्ता तो नहीं है, लेकिन ये जो रिश्ता है हमारे दरमियान ये ब्लड से भी आगे है, खूनी रिश्ते से भी आगे है। क्यों है कि हमारे अंदर एक दूसरे का एहसास है। जब एहसास होगा आप मुअद्दब भी होंगे, आपके अंदर चाहत भी होगी, मोहब्बत भी होगी, ये वो सारी चीज़ें आ जाएंगी। माज़रत एक मिनट रोक रहा हूँ। अबुल हसन, एक नीचे आईडी आई है बिरयानी के नाम से, मेहरुन निसा उनका नाम है।